Hello everyone, welcome to Vedangad Education. Myself Dud sir, and today we are going to discuss about basic electrical engineering, that is BEE. This subject is also known as elements of electrical engineering or EEE in engineering stream. So in today's lecture, I am going to discuss about different modules and the content of that module which we are going to see through these videos. So first of all, I will talk about those students which will be beneficial through these videos. Let us see. So basic electrical engineering is important for first year engineering students. They have common subject BEE in first year engineering. Then diploma students, especially electrical electronics branch students, they also have this subject named EEE or EE. Then backlog students who are failed to clear the first year engineering BEE subject, they can also get benefit from these videos. Then GATE aspirants who are preparing for GATE, they have their higher subject as network analysis, and all this subject needs the basic concepts of BEE. Unless and until you are not cleared with BEE, NA will be hard for you. So go through the basic of all these videos so that for preparation of GATE, if you need higher subject, that is network analysis and synthesis, that will be very easy for you if you go through these videos. So for 11-12 science students also, they will have physics subject, and in physics they will have different modules and the content which they are going to see in their 11 and 12 physics. So these videos will be very beneficial for those students who are preparing for 11, 12, JEE and NEET. So in physics also we have number of different topics in 11th and 12th. So that student may be getting benefit of these videos. So let's start with the first introductory point of all the modules and the content of these modules. So हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से मॉड्यूल्स रहेंगे और उस मॉड्यूल में कंटेंट क्या क्या रहेगा, thoroughly today I am going to tell you about all these things. So let us see from module number 1. So in module 1, you can see the title network theorem or DC circuit. In network theorem, what we are going to see is, so first of all, basic definition like what is current, what is EMF, that is voltage, what is potential difference, then what is circuit, types of circuits, then series resistance, parallel resistance, all these basic I am revising in this. मैं बहुत बेसिक से ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ. नेटवर्क थ्योरम या किसी भी मॉड्यूल का जो भी 6 मॉड्यूल हम पढ़ेंगे उन सारे टॉपिक के डिटेल थरोली एकदम डीप तक हम चलेंगे, न्यूमेरिकल के साथ, थ्योरी के साथ, और बेसिक चीज़ें भी मैं पूरे बता दूंगा. अगर आपके प्रीवियस कुछ कॉन्सेप्ट अधूरे है या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो वो भी इन मॉड्यूल में से आपको क्लियर होगा. सो फ्रॉम बेसिक टू डेप्थ में हम चलने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप. सो इन नेटवर्क थ्योरम आफ्टर सम बेसिक डेफिनेशन वी आर स्टार्टिंग विथ सोर्सेस. आपको पता है सोर्स वोल्टेज और करंट सोर्स रहते हैं. दे आर क्लासिफाइड इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. ऑल्सो इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड प्रैक्टिकल. सो हम ये सारे सोर्सेस देखने वाले हैं. डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट में आइडियल क्या है और प्रैक्टिकल क्या है, और उनके ग्राफ भी हम पढ़ेंगे. सो इन डिटेल हम सोर्सेस के बारे में देखेंगे. देन सोर्सेस के बाद आता है सोर्स का कन्वर्जन. मीन्स हम वोल्टेज का कन्वर्जन करंट में करेंगे और करंट का कन्वर्जन वोल्टेज में करेंगे. वोल्टेज टू करंट एंड करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन. देन उसका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेस करंट सोर्सेस कैसा ऐड करते हैं. एंड देन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ही ये दोनों चीज़ें आती है, दैट इज कन्वर्जन एज वेल एज कॉम्बिनेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज. आप सर्किट को अगर चेंज कर रहे हो मतलब सोर्स के थ्रू कन्वर्ट करके या ऐड करके, तो उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है. सो बेसिक प्रॉब्लम जो रहते हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे भी आते हैं. तो यहाँ पे सोर्स पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तक पढ़ने के बाद इनके सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे. सो आपका बेसिक यहाँ तक क्लियर हो जाएगा. देन हम किरचॉफ्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे. KCL एंड KVL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. थ्रू आउट BEE ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे नेटवर्क को हमको सॉल्व करने के लिए KCL KVL लगता है. विदाउट दैट हम सर्किट एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर सकते. KCL करंट लॉ रहता है और KVL
वोल्टेज लॉ रहता है। इसके ऊपर हमारे स्टार्टिंग के दो एनालिसिस रहेंगे, एक मेश एनालिसिस रहेगा और दूसरा नोडल एनालिसिस रहेगा। जहाँ पे मेश एनालिसिस ये केवीएल का एप्लीकेशन होता है और नोडल मतलब केसीएल का एप्लीकेशन होता है। मतलब केवीएल को, वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके हम मेश एनालिसिस को सॉल्व करेंगे और करंट लॉ को अप्लाई करके हम नोडल एनालिसिस को सॉल्व करेंगे। सो आफ्टर लर्निंग दिस टू लॉज हम मेश नोडल भी पढ़ेंगे। देन 4 थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पहला थ्योरम रहेगा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन, मतलब एडिशन। नंबर ऑफ सोर्सेस सर्किट में है, उसमें से एक एक सर्किट लेके सर्किट एनालाइज करना है और बाद में सुपर इम्पोज करना है सारे वोल्टेजेस और करंट को, तो हमको टोटल करंट या टोटल वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन थ्योरम। देन सर्किट रिडक्शन थ्योरम भी हमारे पास रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। देन नॉर्टन्स थ्योरम। दीज आर कॉल्ड एज सर्किट रिडक्शन थ्योरम्स, मतलब गिवन सर्किट को रिड्यूस करके सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। दैट कैन बी डन बाय थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स, जिसमें कि थेवेनिन्स में हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और नॉर्टन्स में करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स आर द सर्किट रिडक्शन थ्योरम्स। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं एमपीटी, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो कि हम थेवेनिन्स और नॉर्टन से सॉल्व करते हैं। एक बार सर्किट को रिड्यूस किया इन इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट, तो उसमें से पावर भी कैलकुलेट किया जाता है और वो पावर मैक्सिमम कब होगा वो हम या तो थेवेनिन्स से या तो नॉर्टन से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी सर्किट रिड्यूस रहेगा बाय थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम, उसको सिर्फ पीएल मैक्स वाला कंडीशन लगाना है कि व्हाट इज द कंडीशन व्हेन पावर विल बी मैक्सिमम। वो इंटरनल आर और लोड रेजिस्टेंस इक्वल वाला कंडीशन रहता है एंड देन कैलकुलेट दैट मैक्सिमम पावर आइदर थेवेनिन्स के थ्योरम से या तो फिर नॉर्टन से। तो एमपीटी में दोनों भी थ्योरम यूज कर सकते हैं। प्रूफ हमको थेवेनिन्स से है, फार्मूला में हम नॉर्टन्स का भी लगा सकते हैं या थेवेनिन्स का भी लगा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बिट है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि थेवेनिन्स और नॉर्टन्स के पहले हम इसको पढ़ेंगे, बिकॉज जब भी थेवेनिन्स और नॉर्टन्स में इक्विवेलेंट आर निकालना होता है तो बाय मीन्स ऑफ सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन और स्टार डेल्टा का यूज करना पड़ता है। तो स्टार का कन्वर्जन डेल्टा में और डेल्टा का कन्वर्जन स्टार में किया जा सकता है विद सर्टन कंडीशंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले और जितने भी थियोरेटिकल पॉइंट्स आएंगे वो अलॉन्ग विथ बेसिक्स से लेके टिपिकल प्रॉब्लम तक हम चलेंगे, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम मिस ना हो। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करें और कोई भी आप टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक रेफर करें, सारे वैरायटीज़ हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले। ओके, सो आफ्टर फर्स्ट मॉड्यूल हमारा एक टाइप ऑफ सप्लाई खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। ये जो नेटवर्क थ्योरम है इसमें सप्लाई डीसी रहेगा, मतलब बैटरी कनेक्टेड रहेगा। अब हम चलते हैं सेकेंड सोर्स की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में दूसरा सप्लाई रहता है, जिसको एसी बोलते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? सिंगल फेज एसी सर्किट, सिंगल फेज एसी सर्किट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसी की जरूरत क्यों पड़ी, वाई डीसी सोर्स इज लिमिटेड सोर्स और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डीसी सोर्स। जैसे कि सर्किट नेटवर्क को ऑपरेट करना है तो स्मॉलर रेंज के लिए डीसी यूज होता है। जब भी रेंज हाइयर लगेगा तो हम एसी को प्रेफर करते हैं। एसी में भी दो टाइप होते हैं, एक सिंगल फेज और दूसरा पॉलीफेज का जो पार्ट है उसमें हमको 3 फेज एसी है। 3 मीन्स पॉली, मोर देन 1 रहा तो पॉली बोलते हैं। सो पॉलीफेज एसी या 3 फेज एसी एक ही बात है। तो सिंगल फेज में पढ़ने के बाद हम 3 फेज पे जाने वाले हैं, बट एसी सोर्स डीसी पे प्रेफरेबल होता है। तो इसमें हमको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका जनरेशन ऑफ एसी। तो इसमें देखेंगे कि एसी सोर्स को जनरेट कैसा करते हैं, हाउ एसी जनरेटेड। आपको पता है बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है और बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है तो बाय मीन्स ऑफ मैग्नेट जनरेट करते हैं। तो जनरेशन होने के बाद इसका रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका?
AC सप्लाई का। AC सप्लाई वोल्टेज और करंट को ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैसा रिप्रेजेंट करता है। देन इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस आएंगे, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय RMS वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम पीक और क्रेस्ट वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये 4 डिफरेंट वैल्यूज होते हैं AC के। RMS, मैक्स, पीक, क्रेस्ट। मैक्स को ही पीक बोलते हैं, उसको ही क्रेस्ट बोलते हैं, हाईएस्ट वैल्यू। देन होता है इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट का वैल्यू, और बाद में होता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, सो ये चारों डेफिनेशन इसमें देखना है। फिर हमारा उसी के ऊपर डेफिनेशन रहेगा रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज, जिसको हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारा फेजर कॉन्सेप्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। फेजर डायग्राम मतलब ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़, तो हमको फेजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फेजर डायग्राम का बहुत सारा लॉजिक हमको यूज़ होने वाला है। 3 फेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसा करना है, उसके लिए सर्किट एनालिसिस समझना ज़रूरी रहता है। लीड कैसा रहेगा, लैग कैसा रहेगा, क्यों क्वांटिटी लीडिंग है, क्यों क्वांटिटी लैगिंग है, और लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट कैसा यूज़ करना है। सो कैसा भी प्रॉब्लम आया तो गिवन डेटा पे से हाउ टू रियलाइज दैट ये सर्किट इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, इसमें एंगल लैग है, लीड है। सो वो सारे लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा, जिसकी वजह से फेजर कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत सिंपल लगेंगे, और यही कॉन्सेप्ट 3 फेज में भी फिर से यूज़ होने वाले हैं। सो फेजर डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिंगल फेज AC रहेगा। उसके बाद हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि फेजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म में। और उसके बाद हमारे बेसिक डेरिवेशन शुरू होंगे, जिसमें कि सबसे पहले RMS वैल्यू का डेरिवेशन रहेगा, फिर एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन रहेगा। जैसे कि RMS करंट को हमको लिखना है तो उसका फार्मूला मैक्स बाय √2 होता है, और 1/√2 को 0.707 लिखा जा सकता है, इसीलिए RMS इज 0.707 IM। ये हमको एनालिटिकली प्रूव करना है, मीन्स बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसको एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। कई मेथड्स रहते हैं, ग्राफिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, रिजोल्यूशन मेथड है। सो हमको एनालिटिकली प्रूव करना है, मतलब बाय इंटीग्रेशन हमको प्रूव करना है। देन एवरेज वैल्यू भी हमको प्रूव करना है, दैट इज 2/π ऑफ मैक्स। सो 2/π इज 0.636। तो हमको ये भी प्रूव करना है कि एवरेज वैल्यू इज 0.636 ऑफ मैक्स। तो इसके लिए हमको एवरेज का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये 2 बेसिक के डेरिवेशंस रहेंगे। देन हम 3 एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, देन आएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और देन आएगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि RLC जो बेसिक एलिमेंट है, इनके अक्रॉस अगर मैं AC सप्लाई लगाऊं तो हाउ दे आर बिहेविंग, मतलब रेजिस्टेंस AC सप्लाई को कैसा बिहेव करता है, इंडक्टेंस कैसा करता है, कैपेसिटर कैसा करता है। तो हमको ये पता चलेगा कि रेजिस्टिव में VI तो फेज में आ जाते हैं, इंडक्टिव में करंट लैग हो जाता है, और कैपेसिटिव में करंट लीड होता है। ये बिहेवियर ऑफ RLC है जब हम AC सप्लाई लगाएंगे। रेजिस्टेंस तो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको आप DC कनेक्ट करो, AC करो, वो बिहेवियर सेम रखता है, मतलब वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा, और डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज होगा। बट फर्क पड़ता है LC में, इंडक्टिव में करंट लैग होगा जब AC सप्लाई देंगे, और कैपेसिटिव में वो लीड होगा। ये प्रूफ करना है हमको बाय मीन्स ऑफ डेरिवेशन। उसमें ही हमको पावर के भी डेरिवेशन आएंगे कि एवरेज पावर प्रूव करो, रेजिस्टिव में VI और इंडक्टिव कैपेसिटी में वो 0 रहता है एवरेज पावर। सो वो भी हमको डिराइव करना है, राइट। सो ऑल द डेरिवेशंस ऑफ रेजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव हमको पढ़ने। अब एक बार आपको RLC सर्किट का बेसिक पता हो गया तो सीरीज में इन्हीं को ज्वाइन करना है। जैसे कि R और L को ज्वाइन कर दिया तो RL बनता है, R और C को ज्वाइन किया तो RC, तीनों को ज्वाइन किया तो RLC और LC। ये सारे सीरीज सर्किट होते हैं, RL, RC, RLC एंड LC। ये सारा बेसिक ये 3 डेरिवेशन पे डिपेंड है। अगर आपको तीनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सीरीज विल बी वेरी इजी। और सीरीज का पहला पार्ट सिर्फ RL सीरीज भी आपको समझ में आया तो सिमिलर मैनर में हम RC, RLC और LC को डिराइव कर सकते जस्ट बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस। जैसे RL में L है और RC में C है तो L का बेसिक यूज़ किया, उसके जगह पर RC में C का बेसिक यूज़ करना है, और सारा डेरिवेशन सारा लॉजिक सेम चलेगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, और थ्रू आउट आप
इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कोई भी सीरीज सर्किट आया तो इजीली आप उसको डील कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें हम जैसा बात कर रहे थे कि सीरीज एसी सर्किट पढ़ना है, इसके बाद सीरीज एसी सर्किट। तो सीरीज में हमने 4 पार्ट बताए थे, कौन सा है? पहला है आरएल, दूसरा है आरसी, तीसरा है आरएलसी और चौथा है एलसी सीरीज सर्किट। अब ये सीरीज सर्किट में हम रेजोनेंस भी पढ़ेंगे, रेजोनेंस इन सीरीज एसी सर्किट, रेजोनेंस इन सीरीज एसी सर्किट। सो रेजोनेंस के बाद सीरीज सर्किट खत्म हो जाता है, वहाँ पे आएगा नेक्स्ट वाला बिट, दैट इज पैरेलल एसी सर्किट। जैसे कि मैंने बताया आरएलसी तीनों भी बेसिक सर्किट पढ़ने के बाद सीरीज सिंपल हो जाएगा, बिकॉज वही कॉम्बिनेशन करके हमको सीरीज बनाना है। वैसे ही पैरेलल में यही सारा कॉम्बिनेशन होगा, या तो आरएलसी एक दूसरे को पैरेलल होंगे, या तो फिर आरएल पैरेलल आरसी होगा, आरएल पैरेलल आरएलसी हो सकता है, आरसी पैरेलल आरएलसी हो सकता है, या एलसी हो सकता है। तो सारे बेसिक आरएलसी के ही यूज़ करने हैं और उसी से पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाना है और कैलकुलेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो 3 सर्किट पे डिपेंडेंट है। ये तीनों का लॉजिक क्लियर हुआ और कोई एक सीरीज समझ में आया तो बाकी सारे लॉजिक सेम है, और सीरीज आ गए तो पैरेलल इज अ मैटर ऑफ वेरी 5 to 10 मिनट्स। तो इजीली हम लॉजिकली भी उसको डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमको एसी में पढ़ना है। और इसका भी एक रेजोनेंस पार्ट हम ऐड कर लेंगे, रेजोनेंस इन पैरेलल एसी सर्किट, और बाद में चाहिए तो डिफरेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस देख सकते हैं। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज में जब हम जाएंगे तब हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, दैट इज ट्राइंगल्स। सो हमारे पास इंपीडेंस ट्राइंगल आएगा, देन वोल्टेज ट्राइंगल आएगा, देन पावर ट्राइंगल आएगा और एडमिटेंस ट्राइंगल आएगा। सो ये ट्राइंगल पे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल। अगेन सेम है कि अगर आपको किसी भी एक ट्राइंगल का लॉजिक समझ में आया तो सिमिलरली आप सारे ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट अ पार्ट ऑफ लॉजिक। फेजर पे, देन रेजोनेंस पे और ट्राइंगल पे हर बार क्वेश्चन रहता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में रहता है, और बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है हाउ टू ड्रॉ पावर ट्राइंगल। रिमेंबर करते हैं कि आरएल में ऐसा ट्राइंगल है, आरसी में ऐसा है, आरएलसी में ऐसा है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मगिंग अप द ट्राइंगल्स। आप अगर लॉजिकली ट्रीट करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 5 मिनट में आप सारे टाइप के ट्राइंगल ड्रॉ करोगे इन आरएल, आरसी, आरएलसी, कोई भी ट्राइंगल हो। और फार्मूले भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपको कौन सा एंगल है वो ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से यू कैन ड्रॉ। सो बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा थ्रू आउट द लेक्चर्स, सो दैट आपको ये टॉपिक परमानेंटली मेमोराइज होगा। और कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, एसी ऐसा टॉपिक है जो कि लॉजिकल है। अगर आप उसको लॉजिकली पढ़ोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल, और मगिंग अप की कोशिश करोगे तो लॉजिक ध्यान में नहीं रहता, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, लीड कौन है, लैग कौन है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अभी मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ, जो कि इसका ही अगला पार्ट रहेगा। सिंगल फेज की जगह हम पढ़ने वाले हैं अभी 3 फेज एसी सर्किट। तो फेज का मतलब क्या होता है? फेज इज नथिंग बट वेव फॉर्म। एक वेव फॉर्म मतलब एक फेज, 3 वेव फॉर्म मतलब 3 फेज, और पॉली मतलब पॉली फेज, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं अभी। सो मैं यहाँ पर बोलता हूँ पॉली फेज या फिर 3 फेज। ठीक है, एसी सर्किट। जैसे कि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, सिंगल फेज एसी अगर आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करना है तो आप ऐसा ड्रॉ करोगे। इसके जगह पर मुझे 3 फेज चाहिए तो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगे, वो 3 वेव्स आएंगे। ठीक है, एंगल 120 डिग्री रहता है तीनों में भी। सो आर, वाई एंड बी, इस तरीके से वी कैन हैव ऐसा। सो ये आपका आर फेज रहता है फर्स्ट वाला, दिस इज आर फेज। देन सेकेंड वाई फेज, आर, वाई एंड बी, दिस इज द फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज। तो जब भी हमको एक से ज़्यादा फेज चाहिए होता है तो हमको पॉलीफेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने सिंगल फेज में बताया कि हाउ टू जनरेट सिंगल फेज, वो जनरेशन ऑफ एसी होगा, वैसे ही हमको हाउ टू जनरेट 3 फेज, दैट इज जनरेशन ऑफ 3 फेज, ये पहला पॉइंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको पढ़ना है जनरेशन, सेम एज सिंगल फेज हम 3 फेज में जनरेशन पढ़ेंगे। देन अगेन मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल
एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, 3 फेज AC सर्किट या 3 फेज AC क्वांटिटीज़ का वोल्टेज एंड करंट। देन हम इसमें कनेक्शंस देखने वाले हैं कि कैसे टाइप से हम 3 फेज को कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें 2 रहेगा, एक स्टार कनेक्शन और दूसरा रहेगा डेल्टा कनेक्शन। स्टार को वे कनेक्शन भी बोलते हैं और डेल्टा का नोटेशन डेल्टा है, स्टार का वाई है, ठीक है। जब सिमिलर एंड ऑफ वाइंडिंग एक साथ ज्वाइन करते हैं तो तब स्टार बनता है, और जब डिसिमिलर एंड ज्वाइन करेंगे तो डेल्टा बनेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत सिंपल है और लॉजिकल है। एंड अगेन इसके सारे फेजर्स हमको पढ़ना है कि डेल्टा में कैसा फेजर होता है, स्टार में कैसा फेजर होता है। और मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, अगर आपको सिंगल फेज अच्छे से आ गया तो 3 फेज इज़ अ मैटर ऑफ वेरी शॉर्ट स्पैन, बहुत जल्दी से हम 3 फेज को कवर कर सकते हैं। सेम लॉजिक है, सिर्फ एवरीथिंग बिकम्स 3 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू सिंगल फेज। जैसे कि सिंगल फेज में पावर होता है, 3 फेज में हमको 3 गुना करना पड़ेगा, राइट। सो वहाँ पर 2 ही टर्म इंपॉर्टेंट आता है, एक लाइन और दूसरा फेज, लाइन एंड फेज। अगर इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया तो सारी चीज़ें बहुत सिंपल होगी। तो वो भी मैं पूरा क्लियर करवाऊंगा इन 3 फेज। सारे न्यूमेरिकल्स डिटेल में हम देखेंगे इन मॉड्यूल नंबर 3। सो लेट्स गो फॉर मॉड्यूल नंबर 4, दैट इज मैग्नेटिक सर्किट रहेगा। अभी तक हम सप्लाई वोल्टेज में DC और AC की तरफ पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देख रहे थे। अभी मैग्नेटिक सर्किट आएगा। जैसे मैग्नेटिक में मॉड्यूल नंबर 4 में हम 2 पार्ट पढ़ने वाले, एक होता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और दूसरा होता है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक में भी सबसे पहले हमको आएगा कंपैरिजन। इलेक्ट्रिक सर्किट में और मैग्नेटिक सर्किट में हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि सिमिलरिटीज पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में क्या क्या सेम है। जैसे इलेक्ट्रिक में करंट होता है तो मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक में जैसा EMF होता है तो मैग्नेटिक में वैसा MMF होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक में जैसा रेजिस्टेंस होगा, मैग्नेटिक में रिलेक्टेंस होगा। तो ये सिमिलर पॉइंट्स, उसको बोलते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। वैसे ही डिसिमिलरिटीज, मतलब डिफरेंसेस देखना है कि क्या क्या डिफर करता है किसी को मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक तक। तो इलेक्ट्रिक में और मैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है वो भी हमको देखना है। दैट इज कंपैरिजन में दोनों पॉइंट पढ़ेंगे। देन कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जैसे MMF क्या होता है, देन रिलेक्टेंस क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है। परमेबिलिटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एबिलिटी होता है किसी मीडियम का टू अलाउ द फ्लक्स लाइन टू पास। अगर किसी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स लाइन अलाउ हो रहे, पास हो रहे, इजीली जा रहे, तो उसको हाई परमेबिलिटी बोलते हैं। उसका रिलेक्टेंस कम होता है, परमेबिलिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक में, सेम मैनर में। तो परमेबिलिटी पे भी बात करेंगे। देन सीरीज के सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। सीरीज मैग्नेटिक मतलब डिफरेंट मटेरियल से जो हम कंबाइन करके सर्किट बनाते हैं उसको सीरीज कॉम्पोजिट मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। ऐसे सीरीज सर्किट में फार्मूला हमको देखना है। उसमें एयर गैप आता है, मतलब उसको कट कर सकते, तो सर्किट विथ एयर गैप, विदाउट एयर गैप, ऐसे कैटेगरीज रहेंगे और उसके सारे न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। देन इसी में आएगा आपका पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने पैरेलल देखा है या देखेंगे, वैसे पैरेलल मैग्नेटिक भी होता है। सेम कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक में करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, वैसे यहाँ करंट के सिमिलर फ्लक्स डिवाइड होता है। तो यहाँ करंट डिवीजन रूल की जगह पर फ्लक्स डिवीजन रूल से कैलकुलेशन करना पड़ता है और रिलेक्टेंसेस पैरेलल लेने पड़ते हैं। जैसे हम R पैरेलल लेते हैं, जैसे 2 ब्रांच पैरेलल है तो R1 पैरेलल R2 उसका इक्विवेलेंट है। तो वैसे 2 पाथ अगर पैरेलल में जा रहे हैं तो रिलेक्टेंस 2 साइड का निकाल के S1 पैरेलल S2 लेना पड़ता है। सो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत टिपिकल है। एक इसका पूरा डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन और प्रॉब्लम्स लेने वाले, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। देन हमारे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट रहेंगे। उसमें रहेगा पहला लीकेज एंड फ्रिंजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीकेज एंड फ्रिंजिंग। सो लीकेज मतलब जो फ्लक्स लीक होता है उसके बारे में बात करना है, और फ्रिंजिंग इफेक्ट मतलब उस लीकेज की वजह से एयर गैप में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ना, उसको हम फ्रिंजिंग बोलते हैं। और एरिया बढ़ गया तो B कम होता है, B इज इक्वल टू 5/A रहने की वजह से, तो फ्रिंजिंग भी हम इसमें देखने वाले। देन इसमें लॉसेस वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा ट्रांसफार्मर में भी आएगा। ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो मैग्नेटिक सर्किट, तो लॉसेस इन मैग्नेटिक और ट्रांसफार्मर सेम रहेंगे। जैसे कोर का लॉस और वाइंडिंग का लॉस रहता है,
तो कोर लॉस, वाइंडिंग लॉस को डिटेल में पढ़ना है, वो सारे लॉसेस के जो फार्मूलाज है वो भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स भी करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक सर्किट, दैट इज मॉड्यूल नंबर 4। अभी हम आएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे, दैट इज मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रहेगा। ट्रांसफार्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जैसे कि ट्रांसफार्मर ये स्टैटिक डिवाइस है जो एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सिर्फ लेवल ऑफ वोल्टेज या करंट या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो वोल्टेज लेवल बढ़ना कम होना ये ट्रांसफार्मर का काम है, आइदर टू स्टेप डाउन और स्टेप अप द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द आउटपुट। तो ऐसे ट्रांसफार्मर का सबसे पहले हमको देखना है कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसा बनाया जाएगा, देन वर्किंग पढ़ना है ऑफ द ट्रांसफार्मर, देन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, देन इट इज रेफर्ड टू प्राइमरी साइड एंड रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड रहता है। इलेक्ट्रिकली अगर हमको ट्रांसफार्मर को इंडिकेट करना है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, जिसका परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर के सिमिलर हो, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को उसका इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं। तो वो रेफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होता है, मतलब प्राइमरी को सारे एलिमेंट्स अगर लाए ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के तो रेफर टू प्राइमरी हो जाता है, और सारे सेकेंडरी में लेके गए तो रेफर टू सेकेंडरी होता है। तो कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए या तो हम प्राइमरी को रेफर करेंगे टोटल, या तो सेकेंडरी को रेफर करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें भी मैंने बोला था लॉसेस आएंगे, वो सेम रहेंगे एज मैग्नेटिक में जो हमने देखे थे, कोर लॉस एंड द वाइंडिंग लॉस। सो ट्रांसफार्मर में इसके बाद नेक्स्ट वाला आएगा आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और उनका वर्किंग कैसा रहेगा, ये सब हमको देखना है। और उसके डायग्राम्स रहते हैं, लोड डायग्राम जिसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। देन हमको इसमें पढ़ना है ट्रांसफार्मर के बाद इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, देन इसके सारे कैलकुलेशन और रेगुलेशन, इफिशिएंसी एंड रेगुलेशन। इफिशिएंसी मतलब आपको पता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर रहेगा, और रेगुलेशन का मतलब होता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, तो उसको रेगुलेशन बोलते हैं। तो वो कम से कम होना चाहिए, है ना। देन लास्ट वाले मॉड्यूल पे आते हैं, दैट इज मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 6 में हम सारे बेसिक वाले चीज़ें पढ़ने वाले, जिसमें RLC रहेगा, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सो रेजिस्टेंस में हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, मेटल का, अलॉय का, है ना, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इस तरीके से मेटल्स आर कंडक्टर रहेंगे। तो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर के राइज और फॉल का क्या इफेक्ट है, उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अगेन किसी भी टेम्परेचर T पे हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसका फार्मूला निकालना है। देन व्हाट इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, RTC अल्फा, उसका भी फार्मूला निकालना है एट डिफरेंट टेम्परेचर लाइक 0 एंड T, और इसके सारे न्यूमेरिकल पढ़ने। देन सेकेंड पार्ट आएगा इंडक्टर। इंडक्टर में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ EMI, फैराडेज लॉज ऑफ EMI। फैराडे का 2 लॉज रहेगा। पहला लॉ, जब भी कोई कंडक्टर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, और दूसरा वो प्रोपोर्शनल रहता है रेट एट विच द कॉइल और कंडक्टर कट्स द फील्ड, E प्रोपोर्शनल टू d∅dt। देन उसमें हमको एक प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। सेकेंड रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन और कपलिंग कोएफिशिएंट, दैट इज K, कपलिंग कोएफिशिएंट K। और एक चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, उसको BH कर्व बोलते हैं। देन लास्ट में इसका कैपेसिटर वाला कंटेंट रहेगा। तो कैपेसिटर में कंस्ट्रक्शन देखेंगे और वर्किंग देखेंगे कैपेसिटर का। देन कैपेसिटर के टाइप्स देखना है। देन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर,
डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और उसमें एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, और इनके सारे न्यूमेरिकल्स भी हमको पढ़ना है। सो इस तरीके से मॉड्यूल नंबर 1 to 6 में हमको सारे कंटेंट पढ़ने। फिर से एक बार शॉर्टकट में मैं बोल देता हूँ। मॉड्यूल 1 में हम पढ़ेंगे डीसी नेटवर्क और नेटवर्क थ्योरम, मॉड्यूल नंबर 2 में सिंगल फेज एसी, मॉड्यूल नंबर 3 में 3 फेज एसी, मॉड्यूल नंबर 4 में मैग्नेटिक सर्किट, मॉड्यूल नंबर 5 में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मॉड्यूल नंबर 6 में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। सो आने वाले वीडियोज़ में हम बेसिक से शुरू करेंगे ऑफ मॉड्यूल नंबर 1 जो कि नेटवर्क थ्योरम या डीसी सर्किट रहेगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय लर्निंग।